Good morning, fifth standard. Today I welcome you once again in history period. We are going to learn lesson number 5, and that is evolution of mankind. Lesson number 5, evolution of mankind. See, Homo habilis to Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalensis, and Homo sapiens. Today we are going to learn about these points. Okay, take out your book, take out your history book, page number 19. Take out your history book, page number 19, lesson number 5. Okay, evolution of mankind. Evolution means what? Evolution means a gradual process of change and development of something. Evolution means what? Evolution means a gradual process of change and development of something. Change, you must keep it in mind, that means development. Okay, now let us see, from Homo habilis to Homo sapiens. Okay, Homo sapiens, and civilization. In the previous lesson we learned that the primitive man evolved means develop. Evolve means what? Develop. The primitive man evolved means develop from apes. Okay, apes यानी monkey. Okay, the next step for humans was learning to use their hands effectively to make tools. From Homo habilis to Homo sapiens. Now let us see. The skilled human, the species of human who could use their hands skillfully is known as the skilled human. Skilled human means what? The species of human, यानी human के ऐसे species who could use their hands, जो अपने hands skillfully use कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? The skilled human. Okay. The first evidence of this species was found in the border region between Tanzania and Kenya in the continent of Africa. ये इस प्रकार ये जो है इसका जो प्रूफ है, एविडेंस मैंने मींस प्रूफ और पुरावा, इसका पहला एविडेंस कहाँ मिला है, प्रूफ कहाँ मिला है? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीसीज वाज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन. कहाँ पे? इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन तांजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ये तांजानिया केनिया कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके बॉर्डर पे ये इसका प्रूफ पाया गया है. द साइंटिस्ट लुइस लीके who discovered means find out this species, इन्होंने स्पेसीज की खोज की, शोध लगाया, named it Homo habilis, और उन्होंने क्या नाम दिया? Homo habilis, because beside their fossilized means जीवाश्म, because beside their fossils remains he found some tools made by them, और उनके जो जीवाश्म के जो रेमेन्स यानी अवशेष मिले, उनको वहां पर और क्या मिले? टूल्स यानी शस्त्र, औजार मिले. ठीक है. देन इन लैटिन होमो मीन्स मैन. लैटिन लैंग्वेज में होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूजेस हैंड स्किलफुली. हैबिलिस का मीनिंग क्या होता है? द वन हु यूजेस हिज हैंड स्किलफुली, जो अपने हाथ का कौशल्य से उपयोग करता है. होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक. ये जो होमो हैबिलिस थे वो कैसे थे? खड़े रह सकते थे 2 पैरों पे और चल सकते थे. हिज स्पाइन वाज स्लाइटली बेंट. उनका जो स्पाइन था वो थोड़ा सा झुका हुआ था, स्लाइटली बेंट. हाँ, एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट. और his brain was bigger than that of the apes. उसका जो ब्रेन था वो कैसा था? बड़ा था apes से. apes यानी बंदर. हाँ, although his face and limbs were somewhat similar to theirs. और उसके जो उसका जो चेहरा था, उसके limbs थे वो सिमिलर थे यानी सेम थे एप से मिलते जुलते थे. The stone tools made by Homo habilis were not useful for hunting big animals. और ये जो stones उन्होंने बनाए थे Homo habilis ने, वो यूजफुल नहीं थे. किसके लिए? हंटिंग यानी बड़े एनिमल्स की शिकार करने के लिए यूजफुल नहीं थे. दे हैड लिमिटेड यूजेस सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो. वो क्या करते थे? दे हैड लिमिटेड यूजेस, यानी उन्होंने बनाए हुए जो टूल्स थे उसका यूज कैसा था? लिमिटेड था. जैसे कि स्क्रैपिंग मीन्स जो वेस्टेज, जो स्क्रैपिंग मीन्स वेस्टेज और डिस्कार्ड है ना.
मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड, जो एनिमल्स मृत रहते थे उनके खाल से मीट निकालना, मांस निकालना, और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो, या फिर बोन्स यानी हड्डियों को तोड़ना, किसके लिए? टू गेट द मैरो। मैरो मीन्स अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस, दैट इज मैरो, ठीक है। We can infer means guess from this that, हम इससे guess कर सकते कि that Homo habilis was a forager. Forager means a person that searches wildly for food. यानी ये वो क्या थे? Homo habilis यानी फूड के सर्चिंग में इधर उधर घूमते थे, ठीक है। He ate the leftovers of animals that had been hunted by other animals. और बाकी जानवरों ने जो शिकार की है और उससे जो बाकी बचता है ना, उससे वो अपना पेट भरते थे, वो खाते थे। It is possible that he hunted small animals and gathered eggs, wild fruits and roots to eat. और वो क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे, लेकिन कौन किसकी? स्मॉल एनिमल्स की, ठीक है। एंड गैदर्ड एग्स, और उसके एग्स कलेक्ट करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, एंड रूट्स कलेक्ट करते थे फॉर ईटिंग। ओके, now Homo erectus. Homo erectus mark an important stage in human evolution. Erectus means the one who stands erect. Erect means what? Erect means upright or straight. Okay, hence the name Homo erectus. Compared to Homo habilis, he had a more developed brain. इनका जो ब्रेन रहता था ना Homo erectus का, वो ज्यादा डेवलप रहता था comparatively Homo habilis. Okay, humans of the Homo erectus species lived in groups, और ये ग्रुप में रहते थे। Having seen wildfires, humans knew about fire. जब उन्होंने wildfire देखी, wildfire ने वनवा जो जंगल में लगता है, तब उन्हें इसका पता चला, फायर का, आग। Okay, it is likely that Homo erectus had learned the technique of fetching the burning branches of trees to use that fire. इसका मतलब ये होता है कि उनको टेक्निक पता थी। Homo erectus had learned the technique of fetching. Fetching means bringing the burning branches of trees to use that fire. During his time, most of the earth was covered with ice sheets. Therefore, the climate means what? Climate means atmospheric condition, weather, season. Okay, the climate was extremely cold. Extremely means excessively, exceedingly, enormously. Okay, the climate was extremely cold. Climate कैसा था? Weather कैसा था? Cold. Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use fire. लेकिन ये Homo erectus जो थे, वो उन्हें survive करना यानी उस एटमॉस्फेयर के साथ रहना सीख लिया था इन दैट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बिकॉज ही हैड लर्न टू यूज फायर, क्योंकि उनको किसके बारे में पता था? फायर के बारे में पता था, और फायर का यूज किस तरह से करना चाहिए ये भी उन्होंने सीखा हुआ था। ओके, हाउएवर ही हैड नॉट येट मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ मेकिंग फायर, लेकिन फायर किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में उनको पता नहीं था, ठीक है। Now, tools made by Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made by Homo habilis. Homo habilis ने जो tools बनाए थे, tools means equipments, okay, that you can hold in your hand. Equipments, tools made by Homo erectus. ये जो tools बनाए, ये equipments बनाए जो Homo erectus ने, वो कैसे थे? More developed थे और symmetrical. Symmetrical means equal comparatively to those made by Homo habilis. Homo erectus made tools like the hand axe. इन्होंने क्या बनाया? कुल्हाड़, hand axe. Remains of Homo erectus have been found along with his tools in the continents of Africa, Asia, Europe. और ये जो है Homo erectus, इनके remains यानी अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? Have been found along with his tools. और उसके टूल के साथ, उसमें बनाए हुए औजार और शस्त्र के साथ उनके अवशेष पाए जाते हैं अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नाउ सी द पिक्चर, a reconstructed picture of Homo erectus, a stone hand axe made by Homo erectus. Now see, Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis means Neanderthalian man. Okay, one more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. Okay, he was physically big and strong. ये जो था ना Neanderthalensis, ये कैसे थे? Physically
big and strong and stout. Fit. Okay, he is commonly known as Neanderthal. उनको क्या कहा जाता था? Neanderthal man, Neanderthal man, because his remains means relics, अवशेष, were first found at Neanderthal. उनके अवशेष कहाँ पाए गए सबसे पहले? Neanderthal. A place in Germany. Where is Neanderthal? It is in Germany. ठीक है, it's a name of a place, Neanderthal. Right, his brain was more developed than that of Homo erectus. Homo erectus से भी ज्यादा इनका जो ब्रेन था वो कैसा था? ज्यादा डेवलप हुआ था. The Neanderthals primarily lived in caves. पहले वो कहाँ रहते थे? Caves यानी गुफा में. They made tools out of big pebbles. वो बड़े बड़े जो कंकर पत्थर रहते थे ना, उससे क्या बनाते थे? वो टूल्स बनाते थे. As well as from the flex scrap of from them, या फिर उनसे जो ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, लच्छे निकाले जाते थे ना, मराठी ठिकऱ्या म्हणतात त्याला, दगडाच्या, उससे वो औजार बनाते थे. ठीक है, कंकर और उनसे निकाले गए लच्छों से वो औजार बनाते थे. Such tools were fixed on a bone, और वो ऐसे टूल्स कहाँ पर फिक्स करते थे? बोन में. ठीक है, हड्डी में. और वुडन शेफ्ट मीन्स बार, वुडन बार में, लकड़ी का डंडे में. टू मेक वेपन्स लाइक द स्पेयर, एक्स एक्सेट्रा. और उस द नेदरथैलस हंटेड बिग एनिमल्स. किसकी शिकार करते थे वो? बड़े एनिमल्स की. ओके, दे यूज स्क्रैपर्स मेड फ्रॉम स्टोन फ्लेक्स टू स्क्रैप मीट फ्रॉम द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स. डेड एनिमल की खाल से वो क्या करते थे? फ्लेक्स, स्टोन फ्लेक्स से वो कुरेदते थे. दे यूज स्क्रैपर्स. स्क्रैपर मीन्स एक यूनिफेशियल टूल रहता है, यूनिफेशियल टूल यानी. ठीक है, दे यूज स्क्रैपर्स मीन्स दे यूज यूनिफेशियल टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन फ्लेक्स. जो किसका बना रहता था? स्टोन फ्लेक्स का. टू स्क्रैप मीट. किसके लिए वो यूज करते थे? मीट कुरेदने के लिए यूज करते थे. और वो मीट कहाँ से कुरेदते थे? फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल. ओके, दे यूज लेदर क्लोथिंग. क्लोथिंग कौन सा? क्लोथिंग यानी कपड़े, लेदर के. ठीक है, दे वर मेनली मीट ईटर्स. मांस खाते थे. दे एट मीट रोस्टेड ऑन फायर. भुना हुआ मांस खाते थे. ओके, दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर बाय रबिंग स्टिक्स ऑफ हार्ड वुड्स ऑन ईच अदर और बाय स्ट्राइकिंग वन फ्लिंट स्टोन ऑन अनदर टू ऑब्टेन स्पार्क. उनको पता था कि आग किस तरह से निकाली जाती है. जैसे दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर बाय रबिंग स्टिक. रबिंग यानी घिसना एक दूसरे के ऊपर. रबिंग स्टिक्स यानी लकड़ी. ठीक है, काटिंग ऑफ हार्ड वुड. लकड़ी की काड़ी एक दूसरे के ऊपर घिसते थे. ऑन ईच अदर और बाय स्ट्राइकिंग वन फ्लिंटस्टोन. फ्लिंटस्टोन यानी गारगोटी. तो वो जो गारगोटी रहती है वो एक दूसरे के ऊपर घिसना, उससे भी स्पार्क निकलता है. और वो उससे कॉटन वगैरह वहां पर रख के, या सूखी हुई जो रहती है ना, सूखी हुई यानी पेड़ पौधे, जो पेड़ की डालियां जो गिरती है सूखी हुई, उस पर अगर लगाए तो वो आग लग जाती थी. या फिर कॉटन का यूज करते होंगे. ठीक है, इट इज लाइकली दैट नेदरथल्स हैड डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स. Some scientists believe that they also communicated with each other by producing grunts. वो एक दूसरे के साथ बात किस तरह से करते होंगे? By producing grunting sound, short low sound and other primary sound. However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of words. लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है कि उनकी वो कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास कोई डेवलप लैंग्वेज थी, या मतलब दे हैड अ डेवलप लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, या फिर वो कोई मतलब वर्ड्स लैंग्वेज उनके पास थे या नहीं थे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. When a member of the group died, अगर उनमें से कोई मर जाता है, the Neanderthals buried tools, horns, etc. along with the dead body. फिर ये लोग क्या करते थे? उसके साथ साथ tools, horns, ये चीजें उसके साथ डेड बॉडी के साथ ही रख देते थे. ठीक है, ऑल्सो दे अप्लाइड रेड आउक मीन्स गेरू. वो जो गेरू रंग है ना, वो भी डेड बॉडी को दे अप्लाई करते थे बिफोर बरिंग इट, उसको पुरने से पहले. इट इंडिकेट्स मी शो दैट द नेदरथैलेंस
नेदरथैल्स had established some rituals of burying the dead. यानी उनकी भी कोई प्रथाएं पद्धति रही होगी. In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrated up to the continents of Europe and Asia. कुछ समय बाद इसी ग्रुप्स के कुछ मेंबर लोग जो थे ना वो कहाँ उन्होंने अफ्रीका छोड़ा और कहाँ पे आए माइग्रेशन यानी स्थलांतर करना माइग्रेटेड अप टू द कंट्री अप टू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया. ओके और यहाँ पर आके आ गए कहाँ पे यूरोप और एशिया में. नेचुरली दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरमेंट. हाँ अलग अलग जगह का एनवायरमेंट कैसा रहेगा डिफरेंट रहेगा है ना. दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड्स. उन्होंने नए तरीके अपनाए रहने के. Therefore they went on modifying and improving the tools that were essential in their life. और इसीलिए उन्होंने क्या किया जो उन्होंने पहले जो टूल्स बनाए थे उसमें और मॉडिफिकेशन किया चेंज किया इम्प्रूव किया. ठीक है क्योंकि वो उनकी जरूरत थी लाइफ की. However, the improvements in tools took place over thousands of years. Homo sapien is the name used for humans that were more advanced than the Neanderthals. Neanderthals से भी ज्यादा एडवांस कौन थे? Homo sapiens. Okay. Homo sapiens means intelligent or intellectual man. Homo sapiens means what? Intelligent or intellectual man. Underline this. We shall learn more about him later. The Neanderthals and the Homo sapiens were neighbors for some time in Europe. ये एक दूसरे के neighbor थे यूरोप में. It is believed that due to reasons like their conflict with Homo sapiens and inability to adapt to environmental changes, the Neanderthals became extinct. क्या हो गया बाद में देखो ऐसे माना जाता है कि ड्यू टू रीजंस लाइक देयर कॉन्फ्लिक्ट उनका झगड़ा हो गया किनसे होमो सेपियंस से और इनएबिलिटी टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस वो एनवायरमेंटल चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर सकते उस यानी एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए उसके साथ वो मैच नहीं कर सके खुद को वो रह नहीं सके. द नेदरथल्स बिकम एक्सटिंक्ट यानी उनकी प्रजाति जो थी वो क्या हो गई विलुप्त हो गई वैनिश हो गई. Okay, no longer exist or missing हो गई. On the basis of C14 dating, and it is estimated that the Neanderthals became extinct about 30,000 years ago. बाप रे देखो यानी ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जो नेदरथल्स थे become extinct कब विलुप्त हो गए 30,000 years ago. Now Homo sapiens, the human species that was more intelligent than any of the earlier species was named Homo sapiens. ये जो थे बहुत ज्यादा क्या थे इंटेलिजेंट थे. In Europe, Homo sapiens is also known as Cro-Magnon man. Their remains have been found in the continent of Europe. इनके remains कहाँ पे पाए जाते हैं अवशेष यूरोप खंड में एशिया और अफ्रीका खंड में. ओके. Homo sapiens made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to. क्या बनाते थे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ विविध प्रकार के औजार हथियार बनाते थे. ठीक है. दे यूज्ड टू मेक स्टोन ब्लेड्स एंड फिक्स देम इन ग्रूव्स एंड नोचेस मेड इन वुड और बोन हैंडल्स. ओके. नाउ here we stop and we will learn remaining lesson tomorrow with question answers. Okay, fine, bye bye.